to this forum. When we have discussed that कि कुछ topics ऐसे रखने हैं कि जो happiness create करे, तो we thought कि one of the topic बहुत बार है ना, genetic deficiencies B12 and D. तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं कि वो जनरल हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ, योगा, ये वो, तो पंकज ने सोचा कि स्पेसिफिक टॉपिक रखते हैं जिसमें हमें बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों को इसका इशू रहते हैं, एंड वंस इन अ ईयर तो भी इस वजह से कुछ ना कुछ मेडिसिन और ये लेना पड़ती है. सो इमीडिएटली पंकज के माइंड में चित्रा मैडम का नाम आया, एंड वी थॉट कि लेट्स do this session open for all. So I request Pankaj to have his welcome address. Pankaj, over to you. Nanda madam, video on kara. Hi. Hello. Hello everyone. Welcome all to this session on deficiencies of B12 and vitamin D. Vitamin B12 more in particular, because after this COVID wave, first wave, second wave, we are listening that there has been issues of deficiencies of vitamins, and these deficiencies are in turn creating problem to some other parts of the body, or maybe blood, and then resulting into major illness in some patients. Of course, a deficiency doesn't mean that it will lead problem to each and every person. That is an individual specific reaction. So how we can counter any such thing, or how we can take precaution so that such deficiency doesn't crop up in our case. That could be, you know, prevention could be better than cure. And when we thought of this, then no other name than Nanda ma'am strike to my mind, because I know her since many years. And whenever I have discussed about Nanda ma'am with anybody, I have always been telling Praveen that it is DC, and one of the famous clients that I know she has is DC, that is Dilip Chhabria, the renowned personality who renovates cars. So by giving a good diet plan, madam has renovated his body. And correct Nanda ma'am? Yes. Yeah, and there are many other personalities and many people in Pune who have taken benefit of Nanda ma'am. So we thought of having such an eminent personality on our forum for this seminar. So I welcome Nanda ma'am on behalf of Aurangabad branch of WIRC of ICI, and I welcome all other participants, and I have a happy learning, and hope after this session we would be in a position to take precautions so that deficiencies won't arise. Over to you, Praveen. Thank you, Pankaj. In fact, I would like to say, rather than happy, healthy learning with Chite madam, I'll just introduce Chite madam in a few seconds. So we'll start the session. She is a leading dietitian in Pune since more than 15 years of the experience. Praveen, yeah, a small but not required disclosure. या चितळे मॅडमचा आपल्या सीसीएम चितळे सरांचा तसा काही संबंध नाही. Okay. So just much needed आपका क्या बोलेंगे ना, disclosure. Yes. So she is having more than 15 years of experience. Her clientele is across the globe. She has done the post graduation in dietetics. She stood first in Maharashtra state. She handled successfully variety of cases, which includes COVID patients, cancers, diabetics, PCOD, hypertension, high cholesterol. I think, madam, all diseases are almost covered.
और भी कुछ है, but I will not name them. She has her own clinic in Pune at JM Road, and she has her own food brand also, healthy food, Rustic Paustik. Many of the doctor in the Pune recommend her name. If you go to Pune and ask for, I want to consult a dietitian, and major of the doctor you will get to know कि वो ज्ञानोदा मैडम का ही नाम लेते हैं. She work on advisory panel for Muktangan De-Addictive Center. Then she featured in various newspapers, magazine, radio, TV show, Zee Marathi, Vivid Bharati, Big FM, and many more. So I once again welcome you, ma'am, on behalf of Aurangabad branch. Thank you. I'll request you to just start your session. Ma'am, only one request. Yes. We have make this session open for all. If possible, minimum Marathi and maximum English and Hindi. यानी out of Maharashtra के भी कुछ participant join है. Yes. If possible, then it will be good. And participant, whatever the doubts or questions you are having, what we'll do now, we'll have a session of ma'am. Later on, last in the 10 minutes, you will type it in a chat box, or we'll unmute you. We can have a directly voice question. Over to you, ma'am. पुण्यात वजन कमी करायचं असेल तरी चितळे आणि वजन वाढवायचं असेल तरी चितळे बनू असं आहे. Thousands of kilos weight is world is earth पे का मैडम ने reduce करवा दिया है. Over to you, ma'am. Great. Thank you, Mr. Pankaj, Mr. Praveen, for this grand introduction. I remember that day, Pankaj, when you had called me and asked if I'll be able to, or I'll be available to deliver this talk in front of you all regarding B12 and D3 deficiencies in particular. I instantly said yes, because vitamin D3 and B12 in particular are so less known to all of us that either we get deficient of it or we get exploited by the companies who are producing vitamin B12 and D3 synthetically in their laboratories, right? Okay, see, this food science, as I always say, is something new. It is still developing, and there are many things which are recently developed. There are many things which are into pipeline. काफी चीजें अभी तक develop हुई नहीं है. In short, when we say food, initially we used to distribute this food into 3 broader aspects: carbohydrates, proteins, and fats. But slowly we realized that only carbs, proteins, and fats are not everything. We need something else, something about this, which is extremely essential and important for our survival. Then a lot of research. Excuse me, ma'am. Sorry to interrupt, ma'am. थोड़ा हिंदी side अपन ज़्यादा लेंगे, ma'am. Okay. Considering the participants that I was just going through the list, so more of Hindi side will go, ma'am. Okay. So as I say कि ये जो food science है, ये काफी recently develop हुआ है. एंड काफी एक्सपेरिमेंट इसमें चल रहे हैं. काफी रिसेंट टाइम्स में हमने कुछ चीजें सीखी है, डेवलप की है, और काफी चीजें ऐसी है जो हमने अभी तक डेवलप की नहीं है और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं. यू नो, जब इनिशियली हम फूड को डिवाइड करते थे तब वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते थे. बट लेटर स्लोली हमें ये समझ में आया कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ नहीं है. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो काफी इसेंशियल है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेशली ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए. फिर धीरे धीरे, बिकॉज वी ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, उस पर काफी रिसर्चेस हुए, काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और ये सब के बाद वी कुड डिस्कवर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 2 टर्म्स. Now, vitamins and minerals, we call them as micronutrients because we need them in very, very, very small amounts. They are also called as essential nutrients. Essential का मतलब food science में special या बहुत important नहीं होता. इसका मतलब ये है कि vitamins और minerals जिसके बारे में अब हम बोलने जाने वाले हैं, वो चीजें हम खुद produce नहीं कर सकते और हमें वो food से procure करनी पड़ती है, इसीलिए उसे हम essential कहते हैं. There are काफी ऐसे विटामिन्स जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे गट बैक्टीरिया उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ डिस्कस करते नहीं है, बिकॉज ये चीजों को हमें सिंथेटिकली बनाने की जरूरत नहीं होती, हम वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं.
जैसे कि विटामिन क्यू, आपने कभी सुना है इस बारे में? विटामिन क्यू हमारे पेट में हमारे गट बैक्टीरिया खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसलिए हमें उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती। वैसे ही विटामिन के के बारे में शायद आप जानते होंगे, बिकॉज विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे गट बैक्टीरिया खुद बनाते हैं। बट एक समय जब ऐसे आया जब हम काफी सारे एंटीबायोटिक्स लेने लगे, हमारा गट लाइनिंग डिस्टर्ब होने लगा, हम स्ट्रेस से गुजर रहे थे, जब हमने काफी एंटासिड्स लिए और ये विटामिन का प्रोडक्शन जब धीरे धीरे कम होने लगा, देन वी रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस। और अब हम उसे सिंथेटिकली बनाते हैं इन लैब्स एंड वी नो द रिसोर्सेस आल्सो, नेचुरल फूड सोर्सेस आल्सो विटामिन के। ये जो विटामिन्स है इन जनरल, उसे हम वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, ये दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, एंड जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है दैट इज द होल बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड विटामिन सी। अब हम हमारे विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 इज कोबालामिन, और जो हम विटामिन B12 सिंथेटिकली बनाते हैं लैब में उसे कहते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमारे हर बॉडी के हर एक सेल के लिए, उसे फंक्शन करने के लिए विटामिन B12 इज एक्सट्रीमली इसेंशियल। और विटामिन B12 आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, और जो हमारी नर्वस सिस्टम होती है उसमें जो मेलिन शीथ होता है उसमें विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 हमें कितना जरूरी होता है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट डेली है आपको पता है? 2.4 mcg। इट्स सच अ स्मॉल अमाउंट। इतने स्मॉल अमाउंट में विटामिन B12 की हमें जरूरत होती है डेली, और फिर भी हम सभी लोग विटामिन B12 डेफिशिएंसी के काफी कंप्लेंट्स करते हैं। विटामिन B12 ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसका मतलब अगर हम उसका ओवरडोज भी करते हैं तो वो हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर सकता, वो यूरिन मार्फत निकल जाता है बाहर। बट टॉक्सिसिटी तो दूर, हमें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड विटामिन B12 के सिम्टम्स क्या है। मेजर सिम्टम इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी एज आई सेड कि आरबीसी प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 जरूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो आरबीसी प्रोडक्शन कम होता है और उसकी वजह से एनीमिया होता है, जिसे हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसके साथ साथ नर्वसनेस, टिंगलिंग, हातापायाला मुंग्या येणं, बधीर होणं, टायर्डनेस, फटीग, दिन भर हम अगर सोते भी रहे तो भी फ्रेश फील नहीं करते, मेमोरी लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स का डिस्टर्ब होना इन फीमेल्स। अगर मैं और सिम्टम्स बताती गई तो शायद आप सब उसे रिलेट कर पाओगे। हाँ, मुझे भी ये होता है, मुझे भी वो होता है। नॉट नेसेसरीली आप सबको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, बट विटामिन B12 के ये सिम्टम्स हम काफी हद तक महसूस करते हैं। विटामिन B12 के सोर्सेस देखते हैं सो दैट हम कहाँ से विटामिन B12 मैक्सिमम अमाउंट में ले पाए, ये जान पाए। विटामिन B12 का सबसे मेजर सोर्स आप सबको पता है इज नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी अगर आप पोल्ट्री देखो तो एग्स में है, चिकन में है। फिश अगर देखा जाए तो सुरमई इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। मीट में देखना है तो ऑल द एनिमल्स दे प्रोड्यूस विटामिन B12 इन देयर लीवर एंड हेंस द लीवर इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। गोट लीवर अगर आप खा सकते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा विटामिन B12 मिलने वाला है। Now there are vegetarian sources also, so don't worry. Vegetarians के लिए मिल्क, बटर मिल्क, पनीर और चीज एंड दही, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम्स में कई हद तक है, यीस्ट में पाया जाता है, या जो हम सिंथेटिकली बनाते हैं विटामिन B12 इन लैब, जिसके मेडिसिन होते हैं, उसके इंजेक्शंस होते हैं। नाउअडेज देयर आर सर्टेन फूड्स व्हिच आर फोर्टिफाइड विद विटामिन B12, यानी लैब में उनमें विटामिन B12 डाला जाता है, जैसे सोया मिल्क में हो या आलमंड मिल्क में हो, या आप जो भी आजकल सीरियल्स के एडवर्टाइज देखते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाओ विद विटामिन B12 एंड ओटफ्लेक्स लो विद विटामिन B12, उसमें नेचुरली विटामिन B12 नहीं होता, वो केमिकली ऐड किया हुआ होता है इन द लैब। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन B12 का। आवर सेल्स, हमारी बॉडी विटामिन B12 बना सकती है
हमारे में भी वो गट बैक्टीरियाज है जो एनिमल्स में होते हैं, जो विटामिन B12 का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यू नो, व्हेन वी थिंक अबाउट इट, जो हमारे पूर्वज थे, जो प्राइमेट्स में कहूंगी, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स एगो जो प्राइमेट्स थे, वो सभी प्लांट बेस्ड फूड खाया करते थे। सो दे वर ऑल कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। वो सभी लोग अगर प्लांट बेस्ड फूड खाया करते थे, तो फिर उन्हें क्या विटामिन B12 की कमतरता नहीं हुई? तो क्या वो इतना इंपॉर्टेंट विटामिन B12 ना पाके मरे नहीं? वो कैसे मैनेज हुआ फिर? बिकॉज उस दौरान हमारे गट के बैक्टीरिया काफी स्ट्रॉन्ग थे और वो विटामिन B12 का प्रोडक्शन नेचुरली कर पाते थे। इवेंचुअली मैन बिकेम हंटर, यानी फिर हम हंटिंग करना सीखे और हम नॉन वेजिटेरियन फूड इंट्रोड्यूस करना सीखे हमारे खाने में। उसकी वजह से ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसके साथ साथ जब अब नॉनवेज में से इतना सारा विटामिन B12 मिल रहा है, तो हमारी बॉडी क्यों प्रोड्यूस करेगी? सो जो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस है, उसमें हमारी गट कैपेसिटी, गट बैक्टीरिया कम होते गए और धीरे धीरे हम उसका प्रोडक्शन कम करते गए, बिकॉज हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में से वो काफी मिलता गया। इंटरेस्टिंगली, अगर हम सब की अगर फीसेस यानी शिट, शी को अगर लैब टेस्ट में भेजोगे, तो हम सब के शिट में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन B12 पाया जाता है अभी भी। बट इतना B12 अगर हम एक्सट्रीट कर सकते हैं, तो एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर सकते? दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, है ना? ये हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज ये विटामिन B12 अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कोलॉन में प्रोड्यूस होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता, और हम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वापस। देयर इज वन रिसर्च पेपर जो वेल्लोर के यूनिवर्सिटी में अभी पब्लिश हुआ था, जहां पे साउथ इंडियंस का एक ग्रुप जो कि कंप्लीटली वेजिटेरियंस थे, उसमें से एक ग्रुप उन्होंने साउथ इंडिया में और एक ग्रुप को लेके वो लंदन में उन्हें माइग्रेट किया गया। वहां पे भी उन्हें वेजिटेरियन डाइट दिया गया, और फिर आफ्टर फ्यू इयर्स उन दोनों के B12 देखे गए। दोनों में इनिशियली B12 लेवल्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बट धीरे धीरे जो ग्रुप माइग्रेट हुआ था लंदन में, उनका B12 डिप्लीट होता गया। बट जो साउथ इंडियंस यहाँ पे थे और जो वेजिटेरियन फूड ही खाते थे, उनका B12 उसी लेवल पे मेंटेन रहा। ये देखा गया है कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी कभी माइग्रेट हो सकते हैं व्हेन यू आर इन योर ओन हैबिटेट ईटिंग योर ओन फूड। बट जब हम हमारा लोकल फूड चेंज करते हैं और जब हमारा हैबिटेट चेंज होता है, तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ये जो गट बैक्टीरियाज है, दे गेट डिस्टर्ब्ड। और इसलिए जो माइग्रेटरी ग्रुप लंदन में गया था, वो डेफिशिएंट होने लगा B12 में, बट जो साउथ इंडिया में था, वो वेजिटेरियन फूड खा के भी दे वर एबल टू मैनेज देयर विटामिन B12 लेवल्स। नाउ विटामिन B12 ये हमारी बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज होता है? हम B12 खाते हैं और B12 एब्सॉर्ब होता है। इज इट दैट इजी? आई डोंट थिंक सो। ऑल द मैकेनिज्म्स इन आवर बॉडीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और एक चीज दूसरी चीज से काफी रिलेट की गई है। वो देयर इज नो सिंगल पाथवे कि हम B12 खाते हैं, B12 एब्सॉर्ब होता है, जो नहीं चाहिए वो निकल जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट। सो व्हेन वी ईट आवर फूड, सो हमारे फूड में जब विटामिन B12 होता है और जब हम वो फूड खाते हैं, तब हमारे स्टमक में जो एसिड्स होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड पे काम करते हैं, और उसमें से विटामिन B12 को साइड में निकाल के एज अ फ्री रेडिकल रखते हैं। अब ये फ्री रेडिकल वाला जो विटामिन B12 है, वो डायरेक्टली सेल में नहीं जा पाता। उसके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन की जरूरत होती है, उसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। अब मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। वी डोंट नीड एनी मेडिसिन टू इंक्रीज दिस इंट्रिंसिक फैक्टर। सो अब ये जो फ्री वाला विटामिन B12 है, ये हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर को कैप्चर करता है, और फिर जो मॉलिक्यूल बनता है वो इजीली हमारे सेल तक थ्रू ब्लड पहुंच सकता है। दैट मीन्स अगर हम विटामिन B12 कितना भी ले, अगर हम में इंट्रिंसिक फैक्टर बना हुआ नहीं है इनसफिशिएंट अमाउंट, तो हम विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब हम कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन B12 के लिए, तब उसमें ये विटामिन B12 एज अ फ्री रेडिकल होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंपैरेटिवली इजी टू एब्जॉर्ब, बिकॉज हमारे एसिड्स और एंजाइम्स को उन पे काम करने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी इस फ्री रेडिकल को इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है क्लब करने के लिए, तो ही हमारे सेल्स उसे पहचान पाते हैं।
सो उन लोगों में जिनमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उनको आप जितना भी फूड खाने में से B12 रिच दो या उनको जितने सारे सप्लीमेंट्स दो, उनका B12 लेवल ये हमेशा कम रहेगा और इन लोगों के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की जरूरत होती है। सेकेंडली, जो हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि B12 बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है, बट फिर भी द पर्सन इज फेसिंग द सेम इशू, उसे फिर भी टायर्डनेस है, उसे फिर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, उसे फिर भी एनीमिया है, फिर क्या ये और कोई प्रॉब्लम है या B12 इतना होके भी ये डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स क्यों है? अगेन द सेम रीजन जो आपके ब्लड टेस्ट में दिखता है, अगर आपका विटामिन B12 सफिशिएंट दिख रहा हो रिपोर्ट में, बट अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो तो ये B12 सेल तक कभी नहीं पहुंचेगा। Getting me? Now I think हमें किस वजह से ये डेफिशिएंसीज होती है या किन लोगों को ये B12 की डेफिशिएंसीज होती है, ये आप जानना चाहोगे। Since I have given you such a huge bundle of information, आप शायद अभी से जानते हो कि किन लोगों को ये डेफिशिएंसीज होती है। फर्स्ट, जो नॉनवेज नहीं खाते, ऑब्वियसली बिकॉज मेजर सोर्सेस आर नॉन वेजिटेरियन, सो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें ये डेफिशिएंसी होने वाली है, राइट? सो जो वेजिटेरियन लोग हैं, अब इन वेजिटेरियन लोगों में भी जो वेगन होते हैं, आजकल वेगन का काफी फैड आया हुआ है, लोगों को मिल्क नहीं लेना है, छाछ नहीं लेना है, याकुल्ट पीना है, बट बटर मिल्क और दही जो घर में है एज अ प्रोबायोटिक वो नहीं लेना होता। सो ये जो लोग हैं जो वेगन के नाम पे पहचाने जाते हैं आजकल, उन लोगों को ये डेफिशिएंसी सिवियरली हो सकती है। उसके साथ ऐसे लोग जिनमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, जो काफी एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं या उनके स्ट्रेस की वजह से गट लाइनिंग इज डिस्टर्ब्ड, इन लोगों में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने की वजह से ये लोग विटामिन B12 डेफिशिएंट होते हैं। Also, those people who don't secrete enough enzymes and acids so that हमारे फूड विथ विटामिन B12 को जो पहले अटैक करते हैं एंजाइम्स एंड एसिड्स, वो ही अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो ये लोगों में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। एट द सेम टाइम, जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी की हुई है वेट लॉस के लिए, उन लोगों में बिकॉज वो गट लाइनिंग काफी हद तक मैनिपुलेट किया गया है, उन्हें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नाउ वी नो किन लोगों को डेफिशिएंसीज के किन लोग को रिस्क जोन में है, उन्हें डेफिशिएंसीज हो सकती है। नाउ what to do to avoid this deficiency? Now you all are aware, I feel now आप सब भी मुझे बता पाओगे कि हमें क्या करना है। So first and most important, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, they start eating नॉनवेज, बिकॉज नॉनवेज में आपको बहुत इजीली विटामिन B12 मिलने वाला है। बट नॉनवेज भी अगर आपको खाना है और अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली और फैटनिंग नॉनवेज रोज बैठ के खाने लगे बिकॉज मुझे B12 चाहिए, मैं अब बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने वाला हूँ, विल दैट गोइंग टू हेल्प यू? नो, नॉट रियली, बिकॉज इतना ज्यादा नॉनवेज खा के अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे, अगर आपकी फैटी लीवर आएगी, तो वापस इंट्रिंसिक फैक्टर और एंजाइम्स एसिड सब डिस्टर्ब होने वाले हैं, और चाहे जितना नॉनवेज आप खाओ, आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होने वाली है। सो अगर आपको नॉनवेज खाना है तो वो अल्टरनेट डेज या वीक में 2 बार खाओ। मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा फैटनिंग एंड ऑयली एंड रिच इन फैट्स नहीं है, एंड उसके साथ फाइबर का भी इस्तेमाल करो। अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हो तो उसके साथ बॉल भर के सैलेड्स भी खाया करो और फ्रूट्स भी खाया करो। फॉर वेजिटेरियन पीपल, हमें दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब चीजों में से B12 अच्छी अमाउंट में मिलता है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन कि अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे तो B12 मिलने ही नहीं वाला है और मुझे मेडिसिन लेने ही पड़ेंगे, या अगर मुझे B12 वेजिटेरियन सोर्सेस में से लेना है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा मिल्क पीना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पनीर खाना पड़ेगा, विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, तो मैं गोली ले लेता हूं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दैट इज नॉट राइट। एज आई से कि एक ग्लास यानी 250 ml ऑफ मिल्क अगर आप पीते हो तो आपको उसमें से 1.2 mcg इतना विटामिन B12 मिलता है, और हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2.4 mcg, यानी काफी ज्यादा विटामिन B12 हम दूध में से ले सकते हैं ओनली 250 ml ऑफ मिल्क। कैन यू इमेजिन 250 ml ऑफ मिल्क कितना होता है? यू कैन शो मी हाउ मच डू यू फील? दिस मच, 1 glass? Should I show you that so that all the concepts are clear? So then 250 ml of milk is this.
It is just a glass full of milk and we all can have this, you know, in just milk form. Yeah, you can make shakes, you can have chai coffee में milk, but then your requirements, आधी requirement पूरी होगी अगर आप एक glass दूध पी सकते हो तो. That's not too much to ask for, right? दही जो हम घर में जमाते हैं, अगर आप 100 ग्राम दही खाते हो तो आपको उसमें से 0.6 mcg इतना विटामिन B12 मिलने वाला है. 100 ग्राम दही यानी कितना हुआ? इट्स नॉट अ बिग क्वांटिटी. 100 ग्राम दही सिर्फ इतना सा होता है. इतना सा दही तो हम डेली इसमें खा सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, राइट? Then comes paneer. Now paneer 100 ग्राम अगर आप खाते हो तो उसमें से आपको 0.5 mcg इतना विटामिन B12 मिलता है. एंड 100 ग्राम पनीर आप उसकी 2 फ्रैंकी बना के या 1 बॉल ऑफ वेजिटेबल बना के खा सकते. दैट इज दिस मच साइज क्वांटिटी. इट इज सच अ स्मॉल पीस ऑफ पनीर. सो अगर आप वेजिटेरियंस हो तो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट योर विटामिन B12 इनटेक. ग्लास फुल ऑफ मिल्क, 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर, इतना भी अगर आप इंक्लूड कर पाते हो तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट. नाउ ऐसे कोई लोग हैं जो एक्चुअली न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है बिकॉज ऑफ सम इलनेस, यू नो, कैंसर पेशेंट्स है या बहुत ज्यादा TB या कोई इलनेस से सफर कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है. इन सब के लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका B12 बहुत लो है और एज आई सेड दैट्स द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ योर लाइफ, तो आप मेडिसिन ले सकते हो या आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ले सकते हो अगर आप इतनी सी चीज खा के भी विटामिन B12 नहीं बढ़ रहा हो तो. बट आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज फील कि अगर आप आपके नेचुरल हैबिटेट में रहते हो, इफ यू हैव योर रेगुलर घर का ताजा खाना, if you are exercising very well, if you are pampering your gut bacteria, which are the most essential bacteria, अगर आप दही छाछ खा के उसे पैम्पर कर रहे हो, and if you're not taking much of junk food and alcohol, if you are having good night's sleep, then you really can't be deficient in vitamin B12, right? Now next comes our vitamin D. Now vitamin D is not really a water soluble vitamin. Vitamin D is a fat soluble vitamin. That means vitamin D की हमें टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर हम उसे जरूरत से ज्यादा फॉर्म में इनटेक ले तो. विटामिन डी यानी क्लोरोकैल्सिफेरॉल, इसकी जरूरत होती है हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक पर डे. Now when we call vitamin D, it is not a single vitamin, it is a combination of 3-4 vitamins together, which is vitamin D2 and vitamin D3. विटामिन D2 ये हमें जनरली मशरूम और यीस्ट में पाया जाता है. एंड विटामिन D3 जो है, जो हम सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन के ऊपर खुद बना सकते हैं, एज वेल एज हम उसे फिश ऑयल में या एग योक में पा सकते हैं. So as I said, vitamin D is a combination of 2-3 compounds, जिसमें से major compounds are D2 and D3. और जो भी deficiency हमें vitamin D की होती है, उसके corrections के लिए अगर हम कुछ pills लेते हैं या injections लेते हैं, तो वो mainly vitamin D3 का बनाया हुआ होता है, ताकि वो vitamin D levels को जल्दी बढ़ा दे और उसे काफी दिन तक maintain रखे. As I said, vitamin D is a fat soluble vitamin. उसकी toxicity काफी हद तक हो सकती है, इसलिए उसका blood test करके उसे right amount में लेना is very very important. Vitamin D की हमें जरूरत क्यों है? Vitamin D is essential for calcium absorption. आपके bones में या आपके teeth के लिए calcium absorb होना और उसके लिए vitamin D का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए यानी आपके हार्ट के हेल्थ के लिए विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इसेंशियल. ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन डी का राइट अमाउंट में होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज वेल एज बीपी मॉनिटरिंग के लिए, आपका बीपी मेंटेन रखने के लिए भी विटामिन डी इन राइट अमाउंट बॉडी में होना इज इसेंशियल. कई हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के लिए विटामिन डी का राइट अमाउंट में होना इज इसेंशियल. एंड हमारी ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए वी नीड लॉट ऑफ विटामिन डी. यानी जो भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जनरली वो होते हैं, और उसमें विटामिन डी का काफी ज्यादा इंटेक देके हम वो काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं. सो विटामिन डी के सोर्सेस, एज आई सेड,
नेचुरल सोर्स इज सन ऑब्वियसली। सन में अगर आप 15 से 20 मिनट तक खड़े रह सकते हो, दैट इज द रिकमेंडेड डोज। और ये अर्ली मॉर्निंग नहीं करना है हमें, वो 11 AM से लेके 2 PM तक, यानी मिड डे का जो सन होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन D3 आपको मिलेगा, यानी आप बना पाओगे आपकी बॉडी में खुद। सो अगर सन एक्सपोजर चाहिए तो 15 to 20 minutes and that to 11 to 2 PM का sun, not in the early morning sun. Then we get this D from mushrooms also, in yeast also in small amounts. Then there is this fish oil and egg yolk, उसमें भी vitamin D पाया जाता है. So the sources are easy, but you have to use them wisely because as I said, vitamin D is fat soluble, उसकी toxicity हो सकती है. विटामिन डी अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा और रैपिडली होने लगता है, और कभी कभी वो सॉफ्ट टिश्यूज में जहां हमें उसे डिपॉजिट नहीं करना है वहां भी डिपॉजिट होने लगता है। इसके लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हो कि आपका विटामिन डी आपके कैल्शियम को सही डायरेक्शन में ले जाए और सिर्फ बोन्स तक डिपॉजिट करना सिखाए, तो उसके लिए आपके बॉडी में विटामिन के का इनफ अमाउंट में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज। ऑल्सो अगर आपको विटामिन डी की टॉक्सिसिटी प्रिवेंट करनी है तो आपके खाने में विटामिन ए का सही अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप विटामिन ए का सही इस्तेमाल करोगे तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। एंड विटामिन डी अच्छी तरह से मेटाबोलाइज हो और आपकी बॉडी यूज कर पाए, इसलिए यू नीड गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन इट, in your body, from your food sources. So see how complicated it is. So when we take external supplements or when we take injections of vitamin D, तब हम ये काफी मेगा डोसेस में लेते हैं और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत होते हैं। बट इफ वी टेक देम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, खाने में से या सन एक्सपोजर, देन उसके साथ वी ऑब्वियसली, since our food is balanced, we take good amount of magnesium also and good amount of vitamin A also and K also, so that D की toxicity नहीं होती और हम उसे अच्छी तरह से absorb कर पाते हैं। So in short, vitamin B12 and vitamin D3 आपके खाने में सही अमाउंट में लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप वाइजली यूज कर पाते हो तो विटामिन D3 की विदाउट टॉक्सिसिटी यू कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ फ्रॉम फूड एंड एज वेल एज फ्रॉम सन एक्सपोजर। And vitamin B12, as I said, for vegetarians also and for non-vegetarians also, as जो मैंने कहे थे आपको सोर्सेज, उसे राइट अमाउंट में अगर आप यूटिलाइज करते हो और उसके साथ गट बैक्टीरियाज को अच्छी तरह से मेंटेन करना सीखते हो तो आपको ये डेफिशिएंसीज नहीं होने वाली। I hope in nutshell I have given you काफी चीजों की आइडियाज एंड नाउ यू आर मच अवेयर ऑफ विटामिन B12 एंड D3 एंड उसकी डेफिशिएंसीज ना होने के लिए नाउ यू आर गोइंग टू ट्राई इन राइट डायरेक्शंस। If you have any doubts or any questions, you can go ahead with it. Yeah, ma'am, we have some question in नहीं नहीं प्रवीण, चेयरमैन रहने का प्रिविलेज, पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मैम, व्हाट इज द नॉर्मल, जैसे हम ब्लड प्रेशर के लिए एक नॉर्मल पैरामीटर होता है 80/120, सो व्हाट आर द नॉर्मल पैरामीटर्स इन आवर बॉडी ऑफ B12? जैसे मैं टेस्ट कराने को जाऊंगा या मैं कुछ, तो B12 या D3 जो भी है, इनका क्या पैरामीटर रहना चाहिए इन द रिपोर्ट? इन द रिपोर्ट जो मैंने अभी कहा कि विटामिन B12 का हमें जो इनटेक है, डेली रिकमेंडेड जो डोज है वो 2.4 mcg तक होता है। जब आप उन्हें लैब टेस्ट में करते हो तब उनके लेवल्स जो मेजर करने के होते हैं वो अलग फॉर्मूला में होते हैं, और इस दौरान हमें वो 200 से लेके 950 तक इस रेंज में अगर वो हो तो देन दैट इज गुड। अगर वो बहुत लो यानी 200 से भी नीचे हो तो देन वी नीड ईदर सप्लीमेंट्स, और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर बराबर काम नहीं कर रहा है तो वी नीड इंजेक्शंस फॉर इट। और D3 के लिए अगर विटामिन डी आपका रफली 40 के अबाव है, 40 and 80 के बीच में है, then that is going right. If it is below 40, sun exposure low and you take natural sources. If it is below 20, then you may need supplements. If it is below 10, below 5, then you may need inhalers or injections for vitamin D also. Yes, Praveen, you can now ask. Ma'am, we have first question. Can deficiency of B12 lead to difficulty in judgment of view and sight?
Oh yes, obviously. उससे confusion, memory loss, and because see, as I said, vitamin B12 ये nervous system पे जो myelin sheath है उसमें होता है, and अगर आपको वो deficiency होने लगे तो वो myelin sheath properly work नहीं करती around the nerves, और फिर nerve conduction ठीक से नहीं हो पाता, और उसकी वजह से balance जाना चलते वक्त, या फिर memory loss होना, या ये जो आपने अभी symptoms बताए, that is commonly seen. The next one is, ma'am, vitamin D deficiency can result in calcium deficiency also. Yes, because vitamin D is extremely important, as I said, calcium absorption के लिए. तो अगर आप चाहे जितना भी कैल्शियम लो, अगर आप में विटामिन डी नहीं है तो ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने वाला और आपके बोन स्ट्रांग नहीं होने वाले. तो बच्चों को भी इफ दे आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपर्ली, अगर आपको लगता है कि अरे बेटा इतना बड़ा हो गया वो चल नहीं पा रहा है बराबर, या टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट, और उसको D3 और कैल्शियम दोनों साथ में देना इस समय पे बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है. Okay. Can you share the resources of vitamin D and B12 in Jain food? Yeah. Now, do Jains drink milk? Yeah, I think they Yeah, drink milk. milk. Yes, many Yes. of them they do. Yeah, then as I said, it is there in the milk, it is there in the curd, it is there in the paneer, it is there in the buttermilk. And vitamin D ke liye also, sun exposure is the best source, and it is there in milk also in small amount, or in cheese also in small amount. And when you say exposure to sun rays, do you have any specific timing? क्योंकि बहुत बार कोई बोलता है कि मॉर्निंग का लेना चाहिए, कोई बोलता है 10 बजे भी चलता है, कोई बोलता है आजकल पोल्यूशन हो गया है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है. Can you give some light on it? Yeah, I told this already कि विटामिन डी के लिए you don't need morning sun exposure. Morning sun में वो नहीं होता. It is there from 11 AM to 2 PM. और इस सन में आपको बैठते वक्त आपको स्लीव्स रोल अप करने हैं, आपके हैंड्स एंड फेस एक्सपोज होना चाहिए, एंड यू मस्ट नॉट अप्लाई सनस्क्रीन लोशंस आल्सो. Ma'am, for how much time I should be there? 15 to 20 minutes is the recommendation. Depending on the Oh season. yeah, depending on the season, depending on the age, depending on the latitudes where you are staying, but roughly guidelines for us Indians are 15 to 20 minutes. Okay. Next one is, when you say cheese, do you recommend having Amul cheese cubes and slice? Nowhere we get unsalted cheese easily. Oh yeah, that's very true, and that's why cheese is the last option, last resort, because it gives you a lot of sodium, along with vitamin B12 and D3. So the best source, as I said, for vegetarian people is milk. दही घर पे बनाया हुआ, छाछ घर पे बनाया हुआ, पनीर घर पे बनाया हुआ. Now while showing quantities also, I did not show cheese. I just showed you paneer and cheese, paneer Yes. and curd and दूध, So obviously cheese is not preferable, but cheese में सोडियम के साथ B12, D3 है minor amounts में. तो अगर आप चीज खाते हो तो ठीक है, एटलीस्ट D3 जा रहा है, B12 जा रहा है, ये सोच के थोड़ा सा चीज इंक्लूड कर सकते हो, but in control obviously. Okay. Ma'am, when you say the milk, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि whether cow milk or buffalo milk, तो Okay, if you're asking for weight perception, अगर आपको वजन मेंटेन करके B12 कमाना हो तो you can definitely go for low fat milk, cow's milk या skim milk. उसमें B12 उसी अमाउंट में पाया जाएगा. बट अगर वेट इशू नहीं है, अगर आप बच्चों के बारे में पूछते हो तो उनको बफेलो मिल्क भी दे सकते हो if they are able to digest it. It is little heavy on digestion. okay. Why generally doctor prescribe 60,000 IU once a week? Is this absorbed completely, and it is almost 100x more than body required per day as mentioned? Yeah, so as I said, अगर आप रिपोर्ट्स देखते हो और उसके रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए इनिशियली स्ट्रॉन्ग डोसेज 60,000 एज यू सेड लेना जरूरी है, बिकॉज उसमें से भी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता कई केसेस में. और जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड वो इनिशियली वीकली वंस देते हैं, फिर 15 डेज में वंस देते हैं, फिर मंथ में वन देते हैं, और उसके बाद देखिए मेजर गैप्स 2 महीने में, देन 6 मंथ्स में. बट अगर डेफिशिएंसी सीवियर हो तो वी नीड 60,000. अगर डेफिशिएंसी माइनर हो तो देन वी नीड 60,000 वंस इन अ मंथ. दैट इज आल्सो इनफ. Ma'am, sources of D3 for vegetarians, Yeah. other than I think sun exposure. Yes. It is there in the milk, it is there in the curd, it is there in the yeast, and it is there in the mushroom also. Mushroom is a vegetarian thing. अगर आप mushroom खाते हो तो उसपे भी minor small amounts में, but you get good source of vitamin D.
So curd is a common factor for B12 and D. Curd is a common factor for B12 and D. Okay. Yes. Okay. So as you say 100 gram curd अगर हम daily consume करते हैं on an average, so it will solve the problem. यानी जो भी content required by body generic, that will be sufficient for. In terms of B12, 100 ग्राम का दही आपको 0.6 mcg इतना ही विटामिन B12 देता है. हमारी रिक्वायरमेंट होती है 2.4 mcg. तो उस हिसाब से आप मैनेज करके कर्ड खाते हो तो that is going to give you good amount of B12. But as I said, you have to take care of other factors also. Your vitamin K should be in place. Your gut bacteria should be in place. There has to be good intrinsic factor की production inside your stomach. Many times we heard that you should not eat curd in the evening. Is it so? No, अगर आपको दमा हो, अस्थमा हो तो कर्ड में induce that irritation. In such cases also I recommend कि आप कर्ड में थोड़ा सा warm water डाल के उसे छाछ बना के पी सकते हो. You can add little hing in it. उससे ये problems कम होते हैं. Okay. Can we take a calcium and vitamin D medicine together? Yes, we can take calcium and vitamin D के medicines together. There are right now calcium and vitamin D combined medicines available. But you must not take vitamin C and calcium together. Okay. If we take a proper calcium, then the problem of vitamin D will cure? No, we need vitamin D for the absorption of calcium. So अगर calcium लेते हो, but vitamin D नहीं है तो वो absorb ही नहीं होने वाला. Okay. What is 25 hydroxy, which is used for testing vitamin D? Vitamin D, as I said, is a group of certain vitamins. इसमें D2 है, D3 है, and there are two more D के compounds, जिसमें से एक हम हार्मोन के रूप में जो end factor होता है उस पे काम करते हैं. That is that hydroxy वाला, जिसका वो that is the active form of vitamin D जो हमारे बॉडी में हार्मोन जैसे काम करता है. और इसीलिए उसके सिंथेसिस के लिए we need vitamin D. Okay. After certain age, does vitamin D and B12 reduces? Is it related to age? Yeah, it is related to age because हमारी absorbing capacity as age progresses naturally कम हो जाती है. It is not just for vitamin D and B12, but for other nutrients also, जो हमारे macronutrients कहेंगे, उनके लिए भी हमारी absorption capacity, gut capacity धीरे-धीरे कम होती है. So absorption rate कम हो जाता है. Does premature gray hair are also effect of deficiency of vitamin B12 and vitamin D3? It is one of the symptom, but it is not necessarily completely vitamin D की deficiency से ही हुए. That can be hereditary also. It can be hormonal related. It can be stress related. Again, one question I think you have to repeat. What are the symptoms of deficiency of B12? You already said, but I think you joined late. Yeah, so vitamin B12 deficiency के symptoms है megaloblastic anemia because RBC का production कम होता है, numbness, चिड़चिड़, tiredness, fatigue, रात की नींद ना आना, and hormonal imbalance. There is weight gain, but there is severe fatigue and tiredness overall, and numbness and tingling sensation. बधिर होना एखादा भाग. अच्छा, मुंग्या येना, बधिर होना. Yes. Which test for B12 and which type of medicine availability in B12? There are many of the counter medicines for B12. There is Neurobion, there is Subneuron, there is Me12OD. There are many such medicines for B12. But as I said, अगर आप B12 की कमी खाने से पूरी कर सकते हो, and if you are not really a cancer patient or immune system आपकी काफी हद तक disturbed है, वैसे patient नहीं हो, तो then don't directly jump onto the medicines because वो easily available है. Try and improve your gut bacteria. Try and include certain things in your diet first. Okay. Next is, does A2 milk has more vitamin D and B12? No, B12 and D3 naturally इसी amount में पाया जाता है milk में, and the amount is even into A2 1.2 के आसपास, slight here and there, but there is no major addition unless अगर आप उसे fortify करते हो, lab में से जाके अगर chemical add करते हो उसमें, तो उसकी quantity वो ज्यादा दिखा सकते हैं, but naturally उसी amount में more or less it exists. हाथ में मूंगी जैसा आना is due to vitamin D deficiency? E नहीं, it is B12 deficiency. B12, not D. Not D. Okay. What about supplement of B12? Can we take other than I think food? ऐसा कुछ है?
सप्लीमेंट्स तो ऑफ द काउंटर अवेलेबल है, एज आई सेड न्यूरोबियन है, सबन्यूरॉन है, एंड देयर इज दिस एमी12 बॉडी, बट अगर जरूरत हो तो ही लेना, ऑफ द काउंटर मिलते हैं इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। अपना फूड इंप्रूव करो फर्स्ट। नाउ डेज वी आर जस्ट हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, शायद कुछ कमी है तो विटामिन के पिल्स खा लो एंड ये हो गया, बट दैट्स नॉट राइट। ट्राई एंड इंक्लूड फूड सोर्सेज, नेचुरल जो सोर्सेज मैंने अभी बताए हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करो। प्रवीण का शायद कनेक्शन इशू है। connection, yeah. How frequently should we do the blood test for vitamins? Is it really required for kids below 10? या इट इज रिक्वायर्ड फॉर द किड्स ऑल्सो, बिकॉज आपको अगर D3 की कमी है बच्चों में तो उनका ग्रोथ पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखेगा, एज आई सेड कि वो जल्दी चल नहीं पाते हैं, या बोन्स अब ब्रिटल, बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, या दांत जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, और कैविटीज काफी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं, किड्स आर गेटिंग टायर्ड इजीली, हाथ पैर बहुत दुखते हैं। अगर ये सिम्टम्स है तो उनका D3 चेक करना इज रियली इंपॉर्टेंट। And how much should we check only when there are symptoms, or should we do it as a regular process? As a regularly, people say कि once in a year you should get all the tests done. But अगर आप young हो and if you're taking lot of things, variety in your diet, I would recommend 2 साल 3 साल में एक बार सब चेक करवा लो, जिस पे कमी है उस पे work on it, and rest is in your hands. But once you are suffering from certain elements, या आप prone हो किसी deficiencies के लिए, या आपका age factor है, you're crossing 60, then you have to check it every after year. Some people, they take long-term antacid drugs. So Oh, what yeah. happens to their body? When we take lot of antacids, हमारे जो गट बैक्टीरियाज है या हमारा जो एसिड प्रोडक्शन नेचुरली होता है वो काफी हद तक रिड्यूस होता है। एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड्स लो, और फिर एसिड का प्रोडक्शन इतनी हद तक कम होता है कि हम ये सब इश्यूज से सफर करते हैं कि फूड डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, देन द गट बैक्टीरियाज आर नॉट लाइव, उनका प्रोडक्शन कम है, तो B12 का एब्जॉर्प्शन कम है, डी का एब्जॉर्प्शन कम है, विटामिन K इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, विटामिन Q इज डिस्टर्ब्ड, ये सब चीजें होती है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो यूज नेचुरल रेमेडीज। पहले आपकी स्लीप इंप्रूव करो, एक्सरसाइज करो, ट्राई एंड इंक्लूड सब्जा या तुलसी सीड्स इन योर डाइट, जो कि नेचुरली अल्कलाइन चीजें हैं, उसमें एसिडिटी कम होती है। गुलकंद खा लो, गुलकंद से एसिडिटी कम होती है। बहुत ज्यादा अगर एसिडिटी है तो सुबह की शुरुआत मऊ भात से करो, सॉफ्ट राइस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर दिस एसिडिटी इशू। How do we know whether our intrinsic factor is working properly or not? That we can find out only if we are taking B12 and D3, but it is not getting absorbed and you are still suffering from the symptoms. Then only, but there are still आज भी अभी भी कोई भी मेडिकल शॉप में इंट्रिंसिक फैक्टर बढ़ाने के लिए मेडिसिन नहीं है। जैसे अगर आप अभी कहोगे कि हम ह्यूमंस फूड खाते हैं और उसका ब्लड बनता है, बट देयर इज नो सच मशीन अवेलेबल कि उसमें फूड डालो और ब्लड बनेगा। So it is like that. Okay. My vitamin D level is 8. I am 7 months pregnant. Is it required to take supplement? Oh yes, you definitely require supplements right now as well as morning sun exposure. But 7 is pretty low. You should immediately start with the supplements for now. And even you can contact Nanda madam later on for good supplements and food required in pregnancy and food. Oh yeah, in pregnancy, I mean, that is my personal. It makes a huge difference in babies' developments nowadays. Yeah. Which yogasana or pranayam are there for improving B12 or D3? Ideally, you should do Surya Namaskar because then you have to perform it in the presence of sun, facing towards sun, and इसमें naturally आपका D3 भी मिलता है and B12 because जो भी आसन आप perform करते हो morning में, जो stretching है, जो toxins remove होता है, that all helps in production या pampering of your own gut bacteria. So Surya Namaskar जिसमें वो जो भी आसन का जो sequence है, that is really helpful. And आपका खाना खाने के बाद, this is the only asan which is to be performed on खाना खाने के बाद वाला स्टेज, दैट इज वज्रासन, वो आप कर सकते हो फॉर दिस। Is there any age limit for absorption capacity of vitamins through diet? Means after such certain age, we need to fulfill it through medicines only.
या एज आई सेड कि जैसे एज प्रोग्रेस होता है वैसे नेचुरली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बॉडी की कम होती जाती है, एंड उस लेवल पे अगर आपका D3 B12 बहुत ड्रॉप हुआ हो इन स्पाइट ऑफ ईटिंग अ गुड बैलेंस डाइट, देन यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स फॉर अ शॉर्टर वाइल एटलीस्ट, उसे वो पंप करने के लिए, एंड देन यू कैन अगेन रेगुलेट विथ योर फूड. There is a comment. Super informative. Your voice is cracking, Pankaj. Not able to hear you. And one comment is there that superb informative session. Thank you so much. Thanks. One of the, we have some more question. We'll take for another 5 minutes only, 2-3 questions. Is it okay to take a sabja seed in all seasons? या कोई लोगों को सब्जा सीड्स विंटर में लो तो वो कहते हैं मुझे सर्दी होती है और मुझे बहुत ठंडा पड़ रहा है. इन सच केसेस यू कैन अवॉइड ड्यूरिंग विंटर्स, बट समर में इट इज एन एक्सीलेंट फूड. वी ऑल शुड हैव दिस. एंड सब्जा से भी अगर एक लेवल ऊपर देखें तो दैट इज तुलसी सीड्स. ये दोनों के प्लांट्स अलग होते हैं, एंड तुलसी सीड्स में हीलिंग पावर ज्यादा है देन सब्जा. Okay. Next is soft rice should be taken early morning, empty stomach for acidity. Yes, absolutely. Early morning, empty stomach with little ghee, little ginger in it, salt in it, and वो हमें pressure cook नहीं करना है, वो हमें gas पे cook करना होता है to retain all the nutrients from it. Okay. Ma'am, abhi now the question. Can you repeat the name of the seed? Can you repeat the name of the seed that you put? What seeds? सब्जा के साथ में आपने कौन सा बोला? And tulsi seed. Tulsi seed. Yes. Okay. So I think, ma'am, that was the last question. Do you do the online consultancy? Oh yes. A lot of offshore online consultancy is also going on right now. So there are any offshore patients also. Yeah. Yes, Pankaj. प्रवीण, क्या है वो नंदा मैडम जल्दी वापस अवेलेबल नहीं होते. अभी अपने पास टाइम है तो किसी को अगर अनम्यूट करके भी सवाल पूछना है. Okay. Participant, if you are interested to ask the question to Nanda ma'am, kindly raise your hand. We'll unmute you and you can directly ask question to her. मेरे ख्याल से ना पंकज क्या होगा, मेजर ऑफ द क्वेश्चन है ना इनिशियली ही कवर्ड हो चुके हैं. मैम, she explained everything ना, that is really super. मैम, हम लोगों ने जनरली देखा ऐसा पीपीटी प्रेजेंटेशन और वो सब जब लेके बैठते हैं डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली आप वैसे ही दूध दही पनीर सब लेके बैठे थे. Yeah, because अगर आप विजुअली देखते हो ना तो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हो. 100 ml 100 ग्राम्स अगर मैं पनीर कहूंगी तो काफी लोग सोचते रहेंगे अरे कितना पनीर खाना है मुझे, is it this much, but then when I show the exact quantity it makes a big difference. Yeah, there's one question, Praveen. Yes, I was B12 problem. I was having B12 problem and check it and start taking medicine having deficiency of B12, and I am always facing mouth ulcer and feeling of pins and needles in the head and feet. So what to do? Okay, see, सिर्फ विटामिन B12 alone नहीं, then you should talk to your doctor about folate deficiency also. माउथ अल्सर्स अगर आप कह रहे हो तो आपको सिर्फ विटामिन B12 नहीं, पूरा B कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप है वो इंक्लूड करने की जरूरत है, एंड फॉलिक एसिड की भी जरूरत है. उससे माउथ अल्सर्स तुरंत चले जाएंगे. Many time we heard that कि B12 का जो टेस्ट है वो काफी महंगा है. Don't check it directly, जाओ इंजेक्शंस ले लो. That is also once in a year. Is it advisable? ऐसा It is not advisable, and once in a year अगर आप B12 का इंजेक्शन लेते भी हो तो that is all water soluble, वो निकल जाने वाला है. Okay. So then you have to take constant intake of it through your diet. Okay. Rupali, you have raised your hand. Nanda ma'am, just one more question. Does any kind of these deficiencies lead to headaches or like back side में जो एक होता है somewhere? जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज है ये सभी चीजें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होते हैं. यू हैव नमनेस, यू हैव टिंगलिंग, एंड देयर इज मेमोरी लॉस, एंड देयर इज द बैक पेन, एंड देयर इज हेडेक्स. ये सभी चीजें उससे हो सकती है. Headaches by the sense कि यहाँ पीछे दुखता है and it lasts for about 2 to 3 hours. Yeah, so this can be because of some other reasons also, but it's better to get your B12 checked. So on the lower side you can work on it, and Rupali, you should start drinking enough water, because कभी-कभी सिर्फ पानी कम होने की वजह से headaches होते हैं. Have 3 liters गिन के पानी and वो miraculously चला जाएगा. Try this first.
पंकज सर, आप स्माइल मत करो, मैं 5 लीटर रोज पीती हूँ. Nyanada madam, one more thing, if you could just help us with something like summarizing all the things that you have just given us the information. An excellent session, बहुत सारा information. I feel Pankaj sir would add to this. चितळे कुठलेही असो, पूर्ण नॉलेज असतं त्यांना असं. पूर्ण knowledge आणि accurate knowledge. Accurate knowledge. So just Yes. if you could just summarize this somewhere, हम लोगों को जो Ma'am, if you information have आपने some write-ups, maybe हाँ. sometimes when I had visited your clinics, I had seen on your notice board. So maybe असे काही write-ups जर आपण आम्हाला Yes. डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये देऊ शकल्या, तर आम्ही ते सर्क्युलेट, that would be helpful. Yes, okay, I'll do that. I'll mail you in some time so that you can circulate among yours. Great, And great. one more thing, if Praveen, if you could put the information के जो जिनको consult करना है मैम को, तो आप chat box में उनका नंबर या email ID जो भी मैम देना चाहते हैं. हाँ, what we'll do ना, we'll मैडम से लेके we'll circulate it. Right. हाँ, Yes. जो भी मेल आईडी है वो, जो भी उनके असिस्टेंट का नंबर रहेगा. So that direct consultation के लिए जा सकते हैं. ज्ञानदा मॅडम, नाव पीपल आर लकी बिकॉज ऑफ कोरोना. म्हणजे ऍटलीस्ट आता ऑनलाईन लवकर मिळेल, नाही तर मला माहिती आहे पुण्याला येऊन अपॉइंटमेंट घेऊन भेटणं म्हणजे किती टफ टास्क आहे तुम्हाला. Yes, yes. Now online everything is possible. Yes, yes, ma'am. One question is left, I guess, ma'am, if you could just repeat for acidity. Okay, acidity के लिए, as I said, tulsi seeds या sabja, it helps a lot. You can you have to soak it overnight and सुबह आप छोटे से दूध में या पानी के साथ ले सकते हो. Soak it again the whole day और रात को सोने से पहले again in small amount of milk या पानी में ले सकते हो. बहुत acidity है तो start your day with a small वाटी of mahu bhat, soft cooked rice. फ्लेम पे, गैस पे आपको कुक करना है, प्रेशर कुकर में नहीं. एंड इन टर्म्स अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो थोड़े दिन आप व्हीट अवॉइड कर सकते हो या कम खा सकते हो, उससे इन्फ्लामेशन और थोड़ा कम रहेगा. Okay. I think we have covered all the question, ma'am. Ma'am, as you initially said, vitamin Q, which actually मैंने तो पहली बार ही सुना था. तो जैसे बोलते हैं कि हर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है. You are expert in that field. You have very well explained वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए कहाँ कौन सा कंटेंट B12 एंड D रहता है. लाइक फॉर वेजिटेरियन दही, पनीर, मशरूम, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 इज डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक फैक्टर. दैट इज द मेन थिंग. आज तक ऐसा लगता था कि खा लिया और एब्जॉर्ब हो गया रहेगा. दैट इज व्हाट वी थॉट. सो मैडम, एक्चुअली इट इज रियली वेरी नॉलेजफुल एंड नॉलेजेबल सेशन. बहुत सारे इसमें जब रिपोर्ट्स आते हैं तब आदमी एकदम इंथुजियास्टिक रहता है, एंड अगेन वो तब इंजेक्शन या मेडिसिन ले लो. अगेन जब नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट करवाते हैं या कुछ इश्यू आता है तो ही ध्यान देता है. तो आई थॉट आफ्टर लिसनिंग योर सेशन एवरीबॉडी विल अभी से ही टेक केयर करेंगे, सो दैट रिपोर्ट कभी भी निकालेंगे तो B12 एंड D सफिशिएंट आएगा. Yes. So thanks a lot, ma'am, for guiding us on this topic, which is very common for everybody. कोई भी एज ग्रुप का रहो उसी के लिए. एंड इवन विल होप कि ऐसे ही कुछ कॉमन टॉपिक्स पे मैम हम आपको सुनते रहेंगे. So thanks a lot participant. Thanks all of you for having me here. Thank you. Praveen, our tie-up for checking. Yes. Participant, what we have done as this session, back to back this, we have done the tie-up with the Metropolis for the members, family members of CAs. They are offering a very good discounts and even door delivery services. So we'll circulate the details in a day or two, so you can take a benefit of this also. And we'll share Chitra madam's whatever the contact details for online session or whatever consultancy. You can take the benefit of that also. That's it. Thank you for your presence, participants, and interactive your questions. Thanks a lot, madam, once again for coming on our request. Thank you. Thanks all of you. I hope you enjoyed. Yeah. Take care. Bye. Bye.